morning, students. How are you? I think all of you are fine. And before this lecture, we have done reading section, and in reading section, we have done note making. I think note making is clear to you, and keep on doing practice. It needs a lot of practice. Today, I'm sending you video of the first chapter of snapshot book, The Summer of Beautiful White Horse. Okay, and tomorrow I may have your online lecture also. And before starting my lecture, I'm telling you, you have to purchase one register also, long register, and you start writing exercise questions now. And for this chapter you will do exercise question along with me. And previously we have done hornbill chapters also and poem. Then this is your vocation. This will be your vocation homework that you have to complete. Otherwise you can start now also if you are having time. Now for this chapter, how many of, before starting chapter, I would like to discuss with you, how many of you like horse riding? I think every youth, every adolescent children, they like horse riding. It's a good experience, and in past when there was no facility of transportation, mean to say when there was no bikes, car or any other means, then the riding was only by means of animals, and best mean was horse riding, camel, ox, and they use every type of animals for this. But horse riding was the best, and it is quite expensive also. So this is the story that revolves around two children. One is Am and another is Murad. Starting from, and they were quite young. One of them was of 11 year age and another is 13. They were quite young, but both of them were very fond of horse riding. But the problem is this: they belong to a very poor family. But that family was famous for its honesty. In spite of so much problem related to economical status, they were very honest. Normally, due to the problem of money, people may do stealing or thievery or any other commit any other thing. But that family, nobody, no person of that family has ever committed any such type of thing. So they that was a very good mark for the family. Gregorian family was famous for its honesty, though they were very poor. And The Summer of Beautiful White Horse is written by William Saroyan, and the story is about two Armenian boys. They belong to Armenian class, boys Arm and Murad, who belong to the Gregorian family, and their tribe is known for their honesty. They are poor and can hardly earn money for food. मतलब इतनी पावर्टी थी कि फूड भी बड़ी मुश्किल से मिलता था. They both long to ride a horse. फिर भी उनकी इच्छा थी, बच्चे हैं, ख्वाब तो कोई भी ले सकते हैं, there is no problem. They want to ride horse. Murad had stolen a horse. Now उन दोनों में एल्डर कौन है? मुराद. वो एक दिन एक घोड़ा चुरा के ले आता है फ्रॉम ए फार्मर अ मंथ अगो, मतलब एक महीना पहले की बात है ये. एंड वन अर्ली मॉर्निंग ही ब्रॉट इट टू द विंडो ऑफ आर्म एंड आस्क्ड हिम टू कम अलोंग फॉर ए राइड. एक दिन सुबह सुबह, समर डेज है तो नेचुरली सन राइजिंग भी बहुत अर्ली हो जाता है, तो नियर अबाउट 4 AM वो उसकी विंडो पे आके टैप करता है कि इफ़ यू वांट टू राइड यू कम अलोंग विद मी. दे रोड द हॉर्स फॉर मैनी डेज. अब जो है वो हॉर्स जो कि स्टोलन हॉर्स था, वो कुछ दिन उसको मतलब अपनी राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं. व्हेन आर्म गेट्स टू नो द हॉर्स इज स्टोलन, firstly Murad has not told him that he has stolen the horse, but when Arm came to know that he has stolen the horse, he gets shocked but discounts the stealing in his mind. वो इस बात पे बड़ा शॉक्ड होता है
कि नोबडी ऑफ आर्मेनियन फैमिली कैन स्टील एनीथिंग, कोई भी आर्मेनियन बॉय जो है वो स्टीलिंग नहीं कर सकता, दे आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस। लेकिन उसको बड़ा शौक भी लगता है, बट फिर भी वो ये कहते हैं कि राइडिंग के लिए अगर हमने हॉर्स इसने उसका चुराया भी है, बट ही इज़ नॉट सेलिंग इट, मतलब वो उसको बेच नहीं रहा है, और जब तक वो बेचता नहीं है तो वो स्टीलिंग नहीं, मतलब अपनी अजम्पशन वो बना रहे हैं। वन डे द ओनर ऑफ द हॉर्स, हु इज द ओनर, जॉन बायरो, कम्स टू हिज हाउस टू कंप्लेन अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स टू अंकल खुसरो। अब जो मुराद है उसके फादर का नाम क्या है, खुसरो। आम का जो है वो मतलब अंकल हो गया, और वो जो है एक दिन उसके घर कौन आता है, जॉन बायरो। वन डे ऑन द वे बैक टू हाइड द हॉर्स ऑन द डेजर्टेड विनियार्ड। अब वो करते क्या थे, हॉर्स राइडिंग की, और एक सुनसान मतलब अंगूरों का बाग होता है जो कि अब वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो वहाँ पे वो एक जगह बनी हुई है जैसे काफ़ी डेजर्टेड से हाउस होगा कुछ, तो वो वहाँ पे उसको टाइट करके आ जाते हैं, उसको कुछ फोडर डाल देते हैं, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर चले जाते हैं, अपनी हॉर्स राइडिंग करते हैं, फिर उसको बांध के आ जाते हैं। दिस इज़ द वे दे हैव डन, एंड दे मीट द ओनर एंड फील गिल्टी एट द एंड। मतलब ऑनर से जब मिलते हैं तो मतलब वो इस चीज़ को महसूस करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटर्न द हॉर्स बैक टू द ओनर्स बार्न, और उसके खेत में वो वापस छोड़ देते हैं। तो तकरीबन 1-2 महीने मतलब वो अपने पास उस हॉर्स को रखते हैं। सो दिस इज़ द ब्रीफ समरी कि दिस होल चैप्टर रिवॉल्व अराउंड हॉर्स, एंड द हॉर्स वाज स्टोलन बाय 2 आर्मेनियन, ये कजिन्स हैं, आर्म एंड मुराद, ठीक है। और मतलब इसमें जो क्वालिटीज़ दिखाई हैं, कुछ थीम जैसे दिखाया है कि इफ़ वी हैव अर्न समथिंग इन लाइफ, जैसे कोई पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, कोई बहुत रिलीजियस है, कोई बहुत हार्ड वर्किंग है, ये एक हमारा सिंबॉलिक हो जाता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है, कई पर्सन्स होते हैं जिनके नेम से ही हम ये जान जाते हैं कि नो दैट पर्सन इज़ लॉ अबाइडिंग, बहुत वो पर्सन जो है इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकता। मतलब ये क्या होता है, दिस इज़ द थिंग दैट वी अर्नड इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे ऑनेस्टी की इम्पोर्टेंस भी दिखाई गई है, और मतलब ये बात अगर इसको हम संस्कार भी कह सकते हैं कि बच्चों में ये भावना कूट कूट के भरी हुई है कि वी कैन नॉट स्टील एनीथिंग, क्योंकि हमारी फैमिली में मतलब ये स्टीलिंग इज़ नॉट परमिटेड। चाहे आप कितनी आपको भूख से प्यास से आप तड़प रहे हो, यू आर नॉट इवन ए सिंगल ब्रेड टू इट, फिर भी तुम चोरी नहीं करोगे। इस तरह की भावना जो कि बच्चों में ऑनेस्टी, संस्कार, और हमारा व्हाट्स एवर वी अर्न, मतलब मनी की एक साइड में रख के बात की गई है कि आदमी के जो असूल होते हैं, इंसान जो है, अगर आप ऑनेस्ट हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप रिलीजियस हो, तो दैट विल अबाइड बाय योर नेम, कि कोई पर्सन है उसके नाम के साथ ये चीज़ें जुड़ जाती है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। और ये तो पूरी फैमिली के साथ जुड़े होना, आर्मेनियन फैमिली, तो इट्स अ बिग थिंग। मतलब हमारे ये भी एजुकेशन मिलती है कि इफ वी डू समथिंग, कि हम पॉजिटिव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और हमें ये लगता है कि वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, कोई बात नहीं, सूनर द लेटर यू विल बी फेमस बाय दैट थिंग। तो वी शुड मतलब डू प्रॉपर थिंग्स, हमें जो राइट और रॉन्ग के डिफरेंस को ध्यान में रख के काम करना चाहिए, दिस इज़ बीइंग शोन। और अगर हम ऐसा करते हैं, नेचुरली बच्चों ने कोशिश की कि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, लेकिन जो उनके संस्कार थे, जो उनकी इनर उनकी फीलिंग है, वो उनको काफ़ी हर्ट करती है, और वो फिर उस चीज़ को मानते हैं कि वी हैव कमिटेड द मिस्टेक, और वो वापस खुद बेखुद मतलब वो उस हॉर्स को छोड़ आते हैं विदाउट एनी पनिशमेंट। क्वाइट गुड चैप्टर। और मतलब इसमें बच्चों का शौक़ भी दिखाया है कि कैसे कोई गरीब फैमिली का भी बच्चा है तो उसको भी इच्छा होती है जीने की, उसके भी शौक़ होते हैं, उसको भी अच्छा लगता है हॉर्स राइडिंग, ड्राइविंग, एवरीथिंग ही और शी लाइक। तो मैनी थिंग्स दैट इज़ बीइंग शोन हियर, and you will enjoy the chapter while you will do it. I will send you PDF, you will read it,
और बहुत इजी और कंफर्टेबल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सर्टेनली यू विल इंजॉय. और जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमें मेन तो बच्चों के बारे में कि व्हाट दे हैव डन ऑन व्हाट डे आम और मुराद उसके पास आते हैं. मतलब टेक इट अ बिग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. आई लाइक टू सजेस्ट यू कि इसको कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज लेके चलो और आप इसमें खुद क्वेश्चन फ्रेम करो और नोट मेकिंग भी आप कर सकते हो. तो आप जो है रीडिंग को खूब इंजॉय करो और उससे आपके दोनों रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चन भी साथ साथ इसको मान के चला करो. इफ़ यू फील कि दैट पर्टिकुलर चैप्टर इज़ वेरी लेंदी, कोई बात नहीं, 4 पैसेज आप जो है अपने 4 पैसेज को आप थारोली करो, फिर 4 को करो. तो टेक इट मतलब इस ढंग से अगर थोड़ा टाइम अगर आप देते हो नियर अबाउट 20 minutes 25 minutes, तो सर्टेनली यू विल डू द चैप्टर वेरी थारोली. बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें नहीं है, लेकिन जो भी हैं दैट विल हैव सॉल्यूशन फॉर यू. और आप जो है डिक्शनरी यूज़ भी कर सकते हो. दैट यू शुड बी इन हैबिट ऑफ दैट आल्सो. रीडिंग के साथ साथ मतलब हमें बहुत सारी क्वालिटीज़, देखो लैंग्वेज जो होती है ये सबसे मैं मानती हूँ कि इसमें यू गेट द वैल्यूज़. आपको लाइफ के बारे में पता चलता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट, और एक्सप्रेशन कैसे दें, आपका जो भी नैरेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं, आप कैसे ब्यूटीफुली अपने एक्सप्रेशन दे सकते हो. दैट इज़ बीइंग. तो हमें थोड़ा इंटरेस्ट इसमें लेना चाहिए. दैट विल हेल्प यू लाइफ लॉन्ग. ये नहीं है कि सिर्फ 11th क्लास पे आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो यू आर डूइंग. नो, इट विल हेल्प यू थ्रू आउट द लाइफ. एंड दिस इज माई सजेशन. Otherwise you people are very intelligent. Okay, The Summer of Beautiful White Horse, ये जो चैप्टर जो है इसमें आम एंड मुराद ये आई हैव टोल्ड यू अबाउट द समरी. तो ये जो समरी है इसकी जो है डिटेल्स, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स लेसन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन. समरी मैं फिर से लूँगी जब व्हेन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, बिकॉज मैंने इसमें आपको डिटेल्स ऑरली बता भी दी है. तो यहाँ पे वन डे बैक देयर इज अ गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ वेरी इमेजिनेबल kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि आम की एज जो है ही वाज टेलिंग कि मैं जो है इस नरेटर आल्सो, तो वो जो है क्या लिख रहा है कि मैं 9 ईयर ओल्ड हूँ सिर्फ. और एक दिन जो कि उसका फ्रेंड नहीं सॉरी हिज कजन कौन आता है, मुराद आता है, वो उससे थोड़ा सा एज में बड़ा है. और वो जो है मतलब क्या होता है कि इतने छोटे बच्चों के लिए संसार बहुत ब्यूटीफुल होता है, हर चीज़ में उनको इंटरेस्ट होता है. उनको अभी ये नहीं पता है कि वो बिलोंग टू सच ए पुअर फैमिली कि हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं. ऐसा नहीं है, इनमें करेज है, नेचुरली करेज है, तो आप जो है कुछ भी कर भी सकते हो. इफ़ डिटर्मिनेशन इज आल्सो देयर, वन थिंग मोर, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, दैट इज हमें मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अलोंग विद योर डिज़ायर टू डू समथिंग. तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि उसका कजन जो है मुराद, ही इज़ वेरी क्रेजी मतलब इन द सेंस कि वो कुछ भी करने की इच्छा ठान लेता है तो उसके मन में रहती है कि आई मस्ट हैव दिस थिंग. मतलब उसको हॉर्स राइडिंग का शौक है तो उसको किसी भी हाल में उसने पूरा करना था. एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, और उसको ये बात पता नहीं थी. एक दिन वो मॉर्निंग में उसके घर आता है और विंडो पे टैपिंग करता है. he said, I jumped out of bed and looked out of the window. उसी टाइम वो एकदम उठ के बैठ जाता है और विंडो से बाहर देखता है. I could not believe what I saw. क्या देखते हैं वो, क्यों नहीं विश्वास हो रहा. It was not morning, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of world, it was light enough for me to know I was not dreaming. और उसी टाइम वो जब विंडो से मतलब सुबह के 4, 4:30, 5 बजे तो काफ़ी जो है दिन निकल जाता है आजकल समर में, तो उसको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि ही वो सिटिंग ऑन ए हॉर्स, अनइमेजिनेबल फॉर सच ए बॉय, जो कि इतनी पुअर फैमिली से कि इसके पास घोड़ा कहाँ से आया. एंड डे ब्रेक मीन्स डॉन इन द अर्ली आवर्स, मैग्निफिशेंस मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल.
My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. वो अपना हेड को बाहर निकालता है विंडो से, बाहर देखने की कोशिश करता है, अपनी आंखों को मलता है, देखते हैं क्या कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ. Yes, he said in Armenian, is horse. And you are not dreaming. Make it quick if you want to ride. कौन कह रहा है ये वर्ड? मुराद कह रहे हैं. अरे उसको भी था कि वो बहुत सरप्राइज होगा, और वो कह रहे हैं कि नहीं तू सपना नहीं देख रहा है. आई एम सिटिंग ऑन ए हॉर्स एंड यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक. जल्दी निकल यहाँ से अगर तूने राइडिंग करनी है. आई न्यू माई कजन मुराद इंजॉयड बींग अलाइव मोर देन एवरीबॉडी. मतलब वो लाइफ को इंजॉय करता था, और कोई आर्मेनियन फैमिली में करे ना करे, बट ही वॉज as who had ever fallen into the word by mistake, but this was more than even I could believe. लेकिन enjoy तो वो करता है, लेकिन आज तो इसने मतलब unbelievable काम कर दिया है कि वो was on the horse. In the first place, my earliest memories had been memories of horses. मतलब पहले वो भी हर टाइम जब भी कुछ सोचता तो हॉर्स उसको दिखाई देता कि मैंने हॉर्स राइडिंग करनी है. जैसे तुम लोगों को मैंने बहुत शानदार बाइक पे ड्राइविंग करनी है, राइडिंग करनी है, बाइक राइडिंग है, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए. तो इस तरह उस बच्चे का शौक क्या था कि वो हॉर्स राइडिंग करना चाहता. एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन longings to ride a horse. Longing means desire, and this was a wonderful part. और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अलग अनहोनी वाली बात है कि he has come on the horse. Armenian means ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आर्मीनिया ब्रांच, की उनकी अपनी लैंग्वेज है. देन इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, सबसे बड़ी बात है. एंड दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव दैट आई सा. और यही रीज़न था कि हमारे जैसी फैमिली के पर्सन के पास हॉर्स होना इज अनबिलीवेबल. अब उस बच्चे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मुराद कहाँ से घोड़ा लेके आ गया आज. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी. आवर होल ट्राइब and our whole tribe was poverty stricken. उनकी पूरी जो बिरादरी थी वो बहुत गरीब थी. अंत जैसे हम गरीबी कह सकते हैं. एवरी ब्रांच ऑफ द गर्गोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पावर्टी इन द वर्ल्ड. मतलब बड़ी फनी पावर्टी स्टेज में वो रहते थे. नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन अवर बेलीज. कि कुछ को समझ नहीं आती थी कि हम खाते क्या हैं, कहाँ से खाना आता है हमारा. मतलब इतनी पावर्टी थी. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और इवन बड़े बुजुर्गों का भी यही हाल था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी. मतलब जीने का एक सहारा था, वो क्या था? ऑनेस्टी. एंड वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज. कि 11वीं शताब्दी में वो काफ़ी अच्छी फैमिली थी. उस टाइम भी वो ऑनेस्टी के लिए फेमस थे. एंड इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, कभी वो उनकी खानदान जो था बड़ा अमीर था, इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ड. वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट. कि पहली बात उनको अपने आप पे बहुत प्राउड था, फिर ऑनेस्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. कि क्या गलत है क्या सही है, इस पर भी विश्वास करते थे. खाली पेट ये सब बातें बहुत बड़ी चीज़ होती है. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड. किसी का वो मिसयूज नहीं करते थे, किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाते थे. एंड लेट अलोन स्टील, और चोरी तो बहुत दूर की बात है. मतलब कितनी क्वालिटीज़ बीइंग पॉवर्टी स्ट्राइकन, ये लोगों में इतनी क्वालिटीज़ होना बहुत बड़ी बात है. कौन कौन सी क्वालिटी है? और मतलब कि चाहे वो इतनी पुअर फैमिली से, फेमस फॉर फर्स्ट क्वालिटी ऑनेस्टी. एंड लाइक 11 सेंचुरीज में जैसे उनकी बहुत वेल्थिएस्ट फैमिली होती थी, उस टाइम वो ऑनेस्ट थे, आज भी हैं. मतलब छोड़ी नहीं उन्होंने ये बात. पैसा नहीं है बट ऑनेस्टी है. एंड वी वर फर्स्ट प्राउड, अपने आप पे बड़ा उनको प्राउड था कि वी बिलोंग टू सच ए गुड कम्युनिटी. ऑनेस्ट नेक्स्ट, फिर ऑनेस्टी, एंड राइट और रॉन्ग का पता होना, क्या गलत है क्या सही है. एक एक बच्चे को, इतना 9 साल का बच्चा ये बात सोच रहा है, इमेजिन. एंड किसी दूसरे को अपने मतलब के लिए यूज़ ना करना. एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी नो. तो स्टीलिंग,
ये तो इम्पॉसिबल है, सपने में भी नहीं सोच सकते वो लोग। तो इतना मतलब उन लोगों में ये सब बातें कहाँ से आई, मतलब दैट इज़ कि उनको यही एजुकेशन दी जा रही है। एंड कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिशेंट, बड़ा ब्यूटीफुल हॉर्स था वो, इतना अच्छा से लालन पालन किया हुआ। इवन दो आई कुड स्मेल इट एंड सो लवली, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है उसको। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मतलब ये इमेजिनेशन बच्चे की देखो कि वो उसकी सांसों को भी मतलब जान सकता है, इमेजिन कर सकता है। सो एक्साइटिंग, आई कुड बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, कि मुराद के साथ, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ तो कुछ इसका लेना देना ही नहीं है। asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse. ये तो सच है कि घोड़ा तो वो नहीं खरीद सकता। And if he couldn't have bought it, he must have stolen it. सिंपल सी बात है, अगर ये खरीद नहीं पाया तो चुराया होगा। And I refused to believe he had stolen it. अब उसको विश्वास देखिए कितना है अपने कजन पे, अपनी फैमिली पे, कि वो चुरा नहीं सकता। एंड नो मेंबर ऑफ द ग्रोगोलियन फैमिली कुड बी ए थीफ, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी मेंबर उस फैमिली का चोरी नहीं कर सकता। आई स्टीयर्ड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स, वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं, पहले कजन को फिर घोड़े को। देयर वॉज ए पाई स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, दोनों बड़े जैसे धार्मिक रूप से रिलीजियस होता है पाइस का मीनिंग, तो ऐसे लग रहा है कि दोनों बड़े शांत स्टिल, कोई ऐसा लग नहीं रहा उनको देखे कि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। एंड विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेड मी, एक बार उसको खुशी हो रही है घोड़े को देख के, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो फिर डर भी रहे कि कहीं इसने चोरी तो नहीं कर ले, क्या इसने ये गलत काम तो कुछ नहीं कर दिया। मतलब यहाँ पे मतलब ये दिखाई दे रहा है छोटे बच्चे की फीलिंग। देखो एक एज के बाद हर कोई सोच सकता है, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास के बच्चों में ये ऐसी फीलिंग होना बहुत बड़ी बात है। वो इतना सोच रहा है, वॉज थिंकिंग सो मच। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कहाँ से लेके आए हो ये घोड़ा। लीप आउट ऑफ द विंडो, छलांग लगाओ बाहर। ही सेड, इफ यू वांट टू राइड, एक क्वेश्चन मत कर, दिस टाइम इज नॉट फॉर क्वेश्चनिंग, बाहर आ जा, छलांग लगा, एंड इफ यू वांट टू राइड। इट वॉज ट्रू दैट, और ये सच्चाई भी थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, मतलब अब उसको लगे कि इसने घोड़ा चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब तो कोई संदेह ही नहीं है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चॉस, कि तुम्हारी इच्छा है, तूने चलना है हॉर्स राइडिंग करनी है, आ जाओ, अदरवाइज नो। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. अब देखिए बच्चे हैं, उसका भी मन कर रहा है हॉर्स राइडिंग को, और वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है इस बात के कि घोड़ा चुराना सिर्फ राइडिंग के लिए कोई गुनाह नहीं है, जितना बड़ा गुनाह क्या होता है पैसे चुराना। मतलब हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं हम, उसको बेचा नहीं है उसने अभी, मतलब ही मीन टू से फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, और सबके लिए हो सकता है बट ये चोरी नहीं है। इफ़ यू आर वेरी करेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। और घोड़ों का अगर आपको हॉर्स राइडिंग का शौक है तो जिस ढंग से उसके कजन मुराद ने और उसने किया, ये कोई गलत नहीं है। इट्स नॉट द थीवरी, इट्स नॉट द स्टीलिंग, चुराना नहीं कहते। देखिए ये मतलब चैप्टर टोटल इसी पे बेस्ड है, इन लाइंस को बहुत ध्यान से करना है, रिपीट करना है, याद करना है। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तब तक मतलब जो है चोरी नहीं होगी जब तक हम इसको घोड़े को बेचते नहीं। विच ऑफ कोर्स आई नो वी वुड नेवर डू, और उसको पूरा यकीन है कि ये हम कभी करेंगे नहीं, हॉर्स बेचेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, आई सेड। ऑलराइट, ही सेड, बट हरी, कि मैं कुछ कपड़े डाल लेता हूँ, पहन लेता हूँ, एंड वो कह रहे तुरंत, क्विक कर।
I leaped into my claws. I jumped down to the yard from the window. और बाहर जो खाली यार्ड है, बेड है, उसमें वो छलांग लगाता है विंडो से. आई लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद. और उसके पीछे बैठ के वो राइडिंग के लिए चल जाता है. लीप आउट मीन्स जंप आउट फ्रॉम ए प्लेस. खिड़की से निकल रहा है ना वो. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू. अब उस साल जो है वो वहाँ पे मतलब बिल्कुल गांव के बाहर वॉलनट एवेन्यू, मतलब वो एरिया जो था ना, मतलब ये अखरोट वगैरह के जो गार्डन्स वगैरह वो थे उस एरिया में आसपास. बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री. और उसके पीछे पूरा सिटी था. विनीयार्ड, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेज, मतलब पूरे जो है ये खेत खलियान थे अंगूरों के, फिर से बाग, इरिगेशन डिचेज, canals वगैरह एंड कंट्री रोड्स. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू. ऑलिव एवेन्यू मतलब वो जो गार्डन्स आ गए जैतून के. एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. और वो फिर खूब तेजी से जो है दौड़ने लग जाता है. एंड द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. मॉर्निंग टाइम है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, अच्छा है वेदर. वैसे तो समर डेज है बट दैट इन द मॉर्निंग आवर्स इट वॉज वेरी मतलब कूल है, अच्छा लग रहा है उसको. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. और घोड़ा दौड़ रहा है, ये फीलिंग बहुत उसको अच्छी लग रही है. माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द करेजियस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग. और वो जो उसका कज़न मुराद है वो हर चीज़ का शौक़ रखता है और वो फिर गाना भी गाने लग जाता है, मतलब इतना खुश है वो. आई मीन ही बिगेन टू रोर. और गाना क्या गा रहा है वो, चिल्ला चिल्ला के खुश हो रहा है. इवन every family was a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of crazy streak in our tribe. मतलब उनकी फैमिली में सभी जितने भी पर्सन्स हैं उन सबको कोई न कोई शौक, मतलब उनको हॉबी या कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब इस तरह की उनकी फीलिंग है. और ये जो है उन सब में ये करेजी स्ट्रीक जो है उस ट्राइब में हर बार मतलब एक एज लेवल में कोई न कोई बंदा बहुत करेजी होता है. और इस ट्रिक में कौन आया अब, ये कजन मुराद. ही इज़ ऑफ दिस हैबिट. एंड बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोसरौ. और उससे पहले कौन से पर्सन का नाम आ रहा है, अंकल खोसरौ. एन एनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर. और वो काफ़ी जो है हटा कटा पर्सन है, ब्लैक हेयर्स हैं. on the largest mountain in the San Joaquin Valley too. और उस जो सैन जोकिन वैली जो मानी जाती है घाटी टाइप में, तो उसमें सबसे बड़ी मूंछों वाला पर्सन भी वही है. अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर. और बड़ा उसको शॉर्ट टेम्पर्ड है, बड़ा गुस्सा आता है. सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट, बेसबर, कोई बात का उसको मतलब सेंसिलता उसमें बिल्कुल नहीं है. And that he stopped anyone from talking by roaring. और जब भी कोई पर्सन कोई भी बात करने की कोशिश करते हैं और उसको पसंद ना हो तो वो ऊंचा चिल्लाता है और उनको चुप करवा देता है. इट इज़ नो हार्म. और उसके तकिया कलाम है जैसे वर्ड्स, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. मतलब इस तरह की वर्डिंग वो हर बात पे बोलता रहता है. एंड हु इज़ दिस पर्सन, अंकल खुसरो. इसकी क्वालिटी क्या बताइए, कि एनॉर्मस है, पावरफुल है और उसकी सैन जोक्विन वैली के अंदर सबसे बड़ी माउंट स्टेचेस हैं. फ्यूरियस, शॉर्ट टेम्पर्ड, इरिटेबल, इम्पेशेंट, दैट इज स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रॉरिंग. चिल्ला के अगले को चुप करवाता है. इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. इस तरह की वो फीलिंग आम रखता है. कौन, अंकल खोसरो. तो ये जो है अभी उसने मतलब राइडिंग शुरू करी है और बीच में मतलब ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज कजन कि वो करेजी है. और इस तरह के करेजी मेंबर हर बार उनकी फैमिली में एक जनरेशन में कोई न कोई होता है. उससे पहले जो अंकल खोसरो है, अंकल खोसरो जो है चाहे वो इतनी पावर्टी स्ट्राइकन है फिर भी बड़ा गुस्से वाला है, शॉर्ट टेम्पर्ड है और सबसे बड़ी माउंट स्टेचेस रखता है, पावरफुल बॉडी है उसकी. तो इस तरह की उसकी फीलिंग इम्पेशेंट. और तकिया कलाम में उसका नो पे नो अटेंशन टू इट, चाहे वो कितनी खुद पावर्टी स्ट्राइकन है. तो ये विनीयार्ड, प्लांटेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, ऑर्चर्ड्स
ऑर्चर्ड्स क्या है, पीस ऑफ लैंड और प्लांटेशन ऑफ फ्रूट्स, जिसको बागबानी हम बोलते हैं। इरिगेशन डिचेस मतलब कैनाल जो ह्यूमन बीइंग बनाता है ना, जो खेतों में पानी लगाने के लिए। एंड ट्रॉट प्रोसीड विद समथिंग मतलब उसको आगे बढ़ना। डिसेंडेंट ए सिस्टम दैट dwells फ्रॉम एन अर्लियर सिंपल वर्जन। स्ट्रिक्ट रेस, enormous hues, San Joaquin Valley, one of long interior valleys of California। तो कैलिफोर्निया में थोड़ी अंदर की घाटियों के बारे में ये बताया गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने कल अच्छे से रीड करना है। एंड फर्दर आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुमारो एंड रीड द टॉपिक अप टिल नाउ। और एक चीज़ मैंने और बोली थी, अपने रजिस्टर्स लगा लो, और जो है हॉर्नबिल के चैप्टर्स के क्वेश्चन मैंने पीडीएफ के साथ सॉल्व भेजे हैं, आप उनको भी नोट करो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।